Good afternoon, class. Am I not audible to you people? But those who are not able to unmute themselves, they can rejoin the meeting. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. How is everyone doing? Very well, ma'am. Very good. बेटा ये आयुषी शर्मा कौन है जो हमारी क्लास में है? आना तो नहीं है कहीं? Good afternoon, ma'am. Ma'am, it may be a Ma'am, I had Hana. some doubts in history. बेटा सक्षम, सॉरी मैं कल स्कूल गई थी तो मैं आपके डाउट्स क्लियर नहीं कर पाई हूँ. आपने मुझे सब कुछ भेज दिया है, मैं शाम तक आपके भेज दूंगी डाउट्स. ठीक है बेटा, क्लियर करके. Okay, ma'am. फाइन, ठीक है. And ma'am, chapter 2 will come in history, right? Chapter 2 I am not giving बेटा. Excuse me, ma'am. Yes. And chapter number 1. Ma'am, when are ma'am all doubts will be cleared for ma'am upcoming exams? अभी पूछ लो क्या चीज आपको पूछनी है. अभी हम कर देते हैं क्लियर. बताओ क्या डाउट्स. Ma'am, when we will get our syllabus? Yes. चलो अच्छा, let me tell you certain points and then if you feel that your doubts are still not clear, then you ask me, right? Good Right? morning, Okay, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon. हम one by one I'll tell you everything and then you tell me whether things are clear or not still. Okay. So the first thing is regarding your half yearlies, right? As you were told that you will be having half yearlies, right? Mid-September. So maybe the date can shift. ठीक है? So whatever information regarding the dates or the syllabus, you will be informed as soon as possible. Maybe by Monday or by 1st of September, you will be informed about everything. Your syllabus, Good afternoon. the dates for the exams, right? Good afternoon, Parush. Second thing, your paper will not be objective. Your paper will completely be subjective. Reason being, many of the students are not in habit of writing. They need to practice writing because this term 1, term 2 provision for the MCQs part, it is done only for this pandemic reason, right? Maybe when you will come to class 10, things become normal. Then again, you will have to appear for the subjective part. So we cannot completely stick to the objective thing. We need to make you practice also for the subjective part. Ma'am, Right? for half yearlies. Yes, for half yearly. And ma'am, term 2 will be only subjective only, ma'am. नहीं, हाँ, term 2 is subjective. That is why we need to give more practice of writing than the MCQ part. MCQ में you people are very good. आप बहुत ही efficient हैं for marking the correct options. But बहुत सारे बच्चे efficient नहीं हैं in writing. Their speed, their writing, I don't like everything is MCQs. going down. हाँ तरन? Ma'am, I don't like MCQs. They can take your 1 mark, complete 1 mark. If Exactly. you have marked something So wrong. subjective, so subjective we need to prepare for, right? So whatever we'll be having for the UTs, whether it is a half yearly test, whether it is a periodic test, if it is given a UT name, anything, half yearly, UT or periodic, कुछ भी अगर होता है आपका वो ग्रेड होगा ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्टिव पार्ट. ऑब्जेक्टिव उसमें नहीं होगा. 1 मार्क क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क क्वेश्चंस होंगे, 5 मार्क क्वेश्चंस होंगे, बट ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव टाइप होंगे, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं होंगे. Where you need to write at least 1 or 2 sentences for every answer in 1 marks and 2 marks. ठीक है? इतना क्लियर हुआ? Yes, ma'am.
ठीक है, ma'am. बाकी चीज Ma'am, तो I have one problem in writing answers, ma'am. Ma'am, what that problem? ma'am, that according to marks, how much lines should we write, ma'am? बेटा लाइंस पे आप कभी कन्फाइन मत करा करो, आप पॉइंट्स पे कन्फाइन करा करो। हमने आपको पहले भी बताया है कि साइंसेस और सोशल साइंसेस में आप अपने मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो इफ यू स्टिक टू पॉइंट्स। और पॉइंट्स आपके ऐसे होने चाहिए कि वो ऐसा ना लगे कि आपने जबरदस्ती एग्जैजरेट किया हुआ है ना। जैसे हमें एसेज लिखने के आते थे जब हम छोटे थे, तो हमें समझ में नहीं आता था हम क्या लिखे, तो हम कुछ एडिशनल डाल देते थे जिसका कोई सेंस नहीं होता था। तो बिना सेंस की चीजों को हमें वैसे भी नहीं लिखना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है, उसके आपको पता है डिफाइंड 4 या 5 पॉइंट्स ही हैं, तो आप कोशिश ये करो, अगर इफ इट इज अ 2 मार्क्स क्वेश्चन तो आप 3 पॉइंट्स लिख दो उससे रिलेटेड। पर आपके पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए कि वो 2 या 3 वर्ड्स में कन्फाइंड ना हो। इट शुड बी अ प्रॉपर सेंटेंस, लगे कि हाँ बच्चों को पता है कि क्या चीज है और कैसे लिखना है। ठीक है Ma'am, in 3 marks question, how much points should we write, ma'am? 4 points are more than sufficient for a 3 mark question. अगर आपको लगता है कि Okay. आपके 4 points में आपका आंसर कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो आप 2 मार्क्स और ऐड कर सकते हो। बेटा ये अधिराज वर्मा इज देवांश, हु इज दिस अधिराज वर्मा? Ma'am, ma'am, Athar Verma. Ma'am, I am not able to rename. अच्छा ठीक है, Excuse me, ma'am. हाँ जी Ma'am, बेटा। last doubt. Ma'am, हाँ बोलो like बोलो। till now, ma'am, UP government is saying that, ma'am, school has to take consent of the parents. So, ma'am, will school take consent or not? देखो बेटा ऐसा है, Ma'am, यूपी that is गवर्नमेंट, for Delhi government. देखो हम अभी आपको पहले अभी देखो मेरी सारी बातें अभी क्लियर हुई नहीं है। Ma'am, but there is I am coming- no choice for बेटा आई एम कमिंग exams. टू It will be offline. आई एम कमिंग टू दिस ऑफलाइन ऑनलाइन वाला थिंग ओनली। अगर आपकी क्लासेस ऑफलाइन होती हैं तो वो कंप्लीटली ऑफलाइन ही होंगी, ऑनलाइन का कोई जो है पार्ट नहीं होगा उसके अंदर। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आधे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आधे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। अगर कोई भी प्रोविजन किया जाएगा इट विल बी कंप्लीटली सिंगल मोड, डबल मोड हम फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है Ma'am, difficult for teachers and हाँ? students. Ma'am, it will be difficult for teachers. नहीं, नथिंग इज डिफिकल्ट, नथिंग इज डिफिकल्ट। रीजन भी वो वी सही नीड टू से अडेप्ट। बेटा नहीं हमें तो पढ़ाई देखो दोनों कोई में। भी चीज होती है हमें अडेप्ट करना पड़ता है ना। अगर हमारा स्कूल कंप्लीटली ऑफलाइन होता है तो प्रॉब्लम कुछ नहीं होएगी, सिर्फ क्या होगा टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, या ये कह लो कि हम पार्ट्स में, हम शिफ्ट्स में डिवाइड कर देंगे क्लासेस को, आधे बच्चे पहले बुलाएंगे आधे बच्चे बाद में बुलाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को पढ़ने के लिए आना है। और एग्जाम्स की बात रही, जहाँ पे एग्जाम्स की बात रही, तो उन एग्जाम्स में आपके एग्जाम्स ऑनलाइन नहीं होंगे, कंप्लीटली ऑफलाइन मोड में ही एग्जाम्स होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। Ma'am, half yearlies. हाँ, चाहे वो हाफ ईयरलीज हो, अब चाहे वो यूटीज हो, जो भी सिचुएशन होगी उस समय की करंट सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए चीजों को जो है इनिशिएट किया जाएगा। और अभी एज ऑफ नाउ तो सब जगह पे, इवन इन बरेली आल्सो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर ओपन नाउ। नो ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन फॉर दोज स्कूल्स वेयर स्टूडेंट्स आर कमिंग ऑफलाइन। Even nursery KG students are going to school, do you know? In offline Yes, mode. ma'am. Many of these schools, I will not name Yes, the ma'am. schools over here. So we cannot say, देखो हम सब जगह जा रहे हैं, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, बस सिर्फ स्कूल आने के नाम पे हम लोग को जो है टेरर हो जाता है कि भाई हम स्कूल नहीं जाएंगे। I लेकिन मैम हम understand, तो नहीं I understand बहुत सारे बच्चों की फैमिलीज में ट्रेजेडीज हुई होंगी, बहुत सारे फैमिलीज ऐसे होंगे जहां जिन्होंने इस तरीके इस कोविड की में उसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को फेस किया होगा। आई अंडरस्टैंड दैट, बट ओवरऑल अगर आप देखो तो अभी चीजें काफी हद तक नॉर्मल है। इफ वी टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस, अगर हम स्कूल आ भी रहे हैं, अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो हमें नहीं लगता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, वी नीड टू बी लिटिल केयरफुल। हम दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि वो हमारा ध्यान रखेगा। वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, राइट? Ma'am, हाँ जी व्योम। when my parents were saying that they will only send for exams or tests. वो देखो वो कोई इशू नहीं है, वो कोई इशू नहीं है। जो भी होगा वो सब कुछ बेटा बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। ठीक है, पर एग्जाम्स विल बी कंप्लीटली ऑफलाइन। एग्जाम्स हम ऑनलाइन मोड पे नहीं चाहते, क्योंकि इस बार जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें यू ऑल नो दोज हु हैव गिवन सिंसियरली एंड दोज हु हैव चीटेड फ्रॉम दी गूगल बाबा। तो ये तो सबको पता है कि किसने फेयर दिया है किसने अनफेयर दिया है। ठीक है, तो इसलिए और बेटा अब अगले साल सब लोग 10th में जाएंगे। 10th होता है बोर्ड्स, बहुत स्ट्रिक्टली बोर्ड्स। तो बोर्ड्स में आप का जो नॉलेज लेवल है वो आपका बुक का अप टू डेट होना चाहिए। हम इस चीज पे बिल्कुल
रिलाई नहीं कर सकती कि आप लोग कर रहे होगे, खुद से कर लोगे, या ऑनलाइन आपने जो एग्जाम्स दिए वो ऑथेंटिक। सबके लिए नहीं कह रहे हैं हम ये बात, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज फॉर द फ्यू दोज हु आर नॉट सिंसियर विद देयर एग्जाम्स, राइट? Yes, ma'am. It's not mean like to come out. No problem. हाँ, so exams will be completely offline. Classes को एक बार को वो जो भी होगा वो कर लिया जाएगा, ठीक है? Any other doubt left? Ma'am, how many marks exam will be there? बेटा 80 का भी हो सकता है और 50 का भी हो सकता है, दोनों में से भी डिसाइड कुछ नहीं हुआ है। Ma'am, Neeraj sir was saying that it will be completely 50 marks, ma'am. Ma'am, pure exam. And ma'am, the marks is ma'am जो marks मैम अभी UT हुए थे मैम उनके लिए जाएंगे। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, आपके तीन UTs होने हैं, है ना? Ma'am, but in the board, ma'am, कि तीनों यूटीज में जिसमें सही ma'am, मार्क्स जिसमें best होंगे उसमें देने चाहेंगे। वो वाले ले लेंगे। Yes, ma'am. बेटा देखो ऐसा है ना, ये सब चीजें बाद की है, आप अपने तीनों टेस्ट ये सोच के दो कि इन तीनों के मार्क्स ऐड होंगे, है ना? तो इसलिए And ma'am, when the exams will be offline in the offline mode, हम्म, मैम तो ये होगा कि 8 to 11 बुला लिया 3 घंटे और फिर घर चले जाओ, या फिर मैम लाइक एक 50 मार्क्स विल बी देयर मैम, तो फिर रेगुलर क्लासेस भी होंगी ऑफलाइन में। नहीं देखो बेटा, अगर आपके बैक टू बैक एग्जाम्स होते हैं ना, तो इन दैट केस आप लोगों को ऑफ दे दिया जाएगा, आपको एग्जाम दे के लिए बुलाया जाएगा, आपसे एग्जाम लिया जाएगा और आपसे कह दिया जाएगा अब आप पूरे दिन की छुट्टी है, आप प्रिपेयर करो नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो विद इन अ वीक्स टाइम पीरियड हम लोग के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, अननेसेसरी हमारे Ma'am, of 80 क्लासेस। marks paper also. हाँ Ma'am, of 80 marks paper, ma'am, they are, ma'am, big paper, ma'am, we require a हमने क्या बोला, preparation day too. हमने क्या बोला, अगर 80 या 50 मार्क्स का होगा, अकॉर्डिंगली चीजें डिसाइड होंगी, ठीक है? Ma'am, because ma'am, one day holiday, ma'am. How can we prepare in just ma'am a half day? बेटा तो और हम लोग एक बात सुनो, हम तो वैसे भी एग्जाम से पहले प्रिपेयर करते ही नहीं है, एग्जाम से बहुत पहले हम प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। Ma'am, but revision start around. Ma'am, but that one day is very important. That one day I understand is important, पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये जो टाइम आपका निकल रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में आपको जो टाइम मिलता है आप बाकी चीजें रिवाइज कर सकते हैं, आप डिटेल्ड स्टडी मैम अभी तो हम पढ़ सकते हैं मैम, क्योंकि Ma'am, बाद but में there तो is a टेस्ट fact होंगे that तो ma'am, if we पढ़ाएंगे। study, ma'am, there is a fact that if we study whole year and we did not study one day before exam, ma'am, then we will fail. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसा नहीं होता है, आप एक दिन पहले भी पढ़ो, पर आप रिवाइज करते हो एक दिन पहले आप याद कुछ नहीं करते हो, केवल रिवीजन पार्ट Yeah, होता है। ma'am, वो revision बहुत important होता हाँ है तो ना, हमने ma'am, कभी that- मना ही नहीं करा उस रिवीजन के लिए, हमने तो कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो एक दिन का टाइम। Oh, ma'am, in S7, ma'am, that are going to ma'am that are going to happen in September, ma'am उसमें हमें सिर्फ एक वीक में कोई छुट्टी ना लेके सारे एग्जाम बैक टू बैक हो जाएंगे। हाँ तो अगर 50 मार्क्स का एग्जाम होता है तो 1.5 घंटे का होगा, 1.5 घंटे में मुझे नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होनी चाहिए। Ma'am, it will be whole subjective. Ma'am, it's the questions subjective. will be We big, have to ma'am, write only long 1.5 answers. Yes, ma'am. half hour. You don't have to तो write मैं one one word day- answers. डे भी And होगी। now the syllabus is सुनो, too much. जो भी पेपर दिया जाएगा वो टाइम ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा बेटा। मैम कैन यू टेल द सिलेबस ऑफ सिलेबस की बस जो जितना देखो, टर्म 1 का जो भी सिलेबस है वही आएगा आप लोगों को, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। मैम बट इन केमिस्ट्री मैम 2 चैप्टर वर कमिंग इन टर्म 1 एंड मैम बेटा तो ये तो केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे ना, सक्षम हम थोड़ी बता पाएंगे। मैम आपको पता है, मैम बताइए अच्छे से नहीं, पढ़ाइए। हमें सीरियसली नहीं पता है, देखो जो Ma'am, the syllabus is according to the chapters that are done by the teacher. एग्जैक्टली जो हमारा कंसर्न ये था कि हम आपको हिस्ट्री में 2 चैप्टर्स देना चाहते थे, फर्स्ट और सेकंड, बट देन आई रियलाइज कि सेकंड चैप्टर भी उतना ही डिटेल चैप्टर है जितना कि फर्स्ट है आपका, तो हम ये कर सकते हैं कि फर्स्ट मैम चैप्टर फर्स्ट में हवा निकल रहा है। हम सेकंड चैप्टर Excuse दे me, देंगे, ma'am. फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हमने दे दिया है। जी बेटा हर्षित, मैम we should get our मैम syllabus, मैम डेट शीट मिले ही ना मिले मैम, बट सिलेबस मिल जाना चाहिए मैम, बिकॉज क्या मैम आपको- 20 मैम वन सिंगल डे भी मैम बहुत ज्यादा क्रूशियल है मैम। आपको दोनों चीजें एक साथ मिलेगी, सिलेबस एज वेल एज दी डेट शीट, दोनों चीजें एक साथ दे दी जाएंगी, ठीक है? मैम इन हिस्ट्री चैप्टर मैम till मैम which इन date? हिस्ट्री चैप्टर 2 मैम हाँ। मलाइजन एक्सेस वाला ही तो मैप आएगा बस। हिस्ट्री चैप्टर
2 में वो आपका वर्ल्ड मैप्स, सेंट्रल एक्सेस, सेंट्रल पावर्स एंड एक्सेस अलाइज, सॉरी। एंड मैम विच सोर्सेस, मैम सोर्सेस कौन कौन से? व्हाट मैम सोर्सेस होते हैं ना चैप्टर में, मैम वो कौन कौन से आएंगे? वो सब देखो, वो सब अब जब हम रिवीजन कराएंगे ना आपको, हम 4 या 5 दिन रिवीजन कराएंगे, तो उस रिवीजन में हम सब कुछ करवा देंगे आपको, ठीक है? मैम बस 4-5 मैम। दिन। अरे मैम? शेष, मैम मैम 4-5 दिन में मैम आपकी क्लासेस में बेटा, 3 या geography 4 के ही एक दिन आपको होती पता है। है आप लोग का हिस्ट्री का एक और मैम चैप्टर कितनी बार एडजस्ट करें? एक चैप्टर पूरा इम्पोर्टेंट आपका ये हिटलर वाला पूरा बचा हुआ है। इट विल ईट अप्रोक्सीमेटली 20 पीरियड्स और 25 पीरियड्स, 25 लेक्चर्स मैम आपको इट इज सो लॉन्ग। मैम मैम रशियन हिटलर रेवोल्यूशन वाला इज नॉट चैप्टर येट रशियन कंप्लीटेड। रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी ज्यादा डिटेल है। मैम काफी रशियन डिटेल रेवोल्यूशन तो मैम नहीं, अभी डिटेल्ड कंप्लीट है। हुआ नहीं है। एक्चुअली डिटेल्ड इसलिए है बेटा क्योंकि उसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इवेंट्स भी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इवेंट्स भी हैं, फिर आपका छोटी छोटी चीजें बहुत सारी जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, वो छोटे छोटे इवेंट्स भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो वो थोड़ा सा डिटेल में, हालांकि इट इज वेरी इजी इफ यू कंपेयर इट विद चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स। क्यों? क्योंकि आपको हिटलर के बारे में बहुत कुछ पता है। मैम मैम पूरी अभी बुक तक में तो से चैप्टर 2 सिर्फ 4 कंप्लीट भी नहीं चैप्टर हुआ है। एलिमिनेट किया गया है ना। वही तो बेटा, इसीलिए तो हम ज्यादा परेशान है कि जब आप बाकी दोनों क्लासेस में हमने क्लाइमेट चैप्टर आधा कर दिया है पढ़ा के और समझा के, ज्योग्राफी में आप लोगों का हिस्ट्री अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो हम बाकी कैसे करेंगे? मैम हिस्ट्री मैम रशियन मैम रेवोल्यूशन इज हिस्ट्री नॉट वाली येट बुक में चैप्टर कंप्लीटेड। 4 एलिमिनेट हो गया है ना। चैप्टर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी, हाँ वो एलिमिनेट हो गया, डिलीटेड। और मैम बाकी 4 चैप्टर्स अभी भी हैं। नहीं और कुछ नहीं है बेटा, केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड। और मैम Ma'am, till 5th चैप्टर which date, ma'am, we will get our syllabus? मैम फोर्थ It is not पेज there. एलिमिनेट। Ma'am, till which date we will get our syllabus? Beta, we need to speak because it was already decided that if we will give holidays, then more days will be consumed, approximately 10 days. Ma'am, so mostly complete by October last, so ma'am, why holidays are not given? Ma'am, because ma'am, syllabus is of almost like half yearly only for 50 marks only. No, Tarun, no wild card entry will be there for this chapter 4. No wild card entry. जी बेटा, देखो बेटा, छुट्टी सुनो, ये छुट्टी वाला कंसर्न छोड़ दो, है नहीं है, हम फोकस करेंगे पढ़ाई पे ज्यादा, ठीक है? हाँ पौरुष बोलो बेटा। मैम ज्योग्राफी में चैप्टर 2 में कौन सा मैप करना है, एक बार बता देंगे आप? बेटा ज्योग्राफी का जिस दिन ज्योग्राफी का क्लास होगा उस दिन हम पढ़ेंगे, आज अभी रहने दो, आज हिस्ट्री खत्म कर लो बेटा चैप्टर, है ना? मैम मैम ज्योग्राफी बता में दीजिए फर्स्ट कौन और सा सेकंड करना है चैप्टर ही आएगा ना बस। Excuse me, ma'am, only ma'am last चीज बता दीजिए मैम हाँ? syllabus कब तक आएगा? बेटा मंडे ट्यूसडे तक मिल जाएगा सिलेबस आपको। मैम बिकॉज मैम अगर हम कुछ वो कर ले मैम जो आ ही नहीं रहा है, तो मैम हमारे ऐसा- 2-3 दिन बेकार बेटा ऐसा जाएंगे कुछ ना। नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो आपको सिलेबस में वही दिया गया है जो आप लोगों को कराया गया है। और हिस्ट्री में हमने आपको पहले ही बता दिया, चैप्टर 4 आपका डिलीट हो गया तो वो आएगा ही नहीं। मैम ज्योग्राफी में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ही आएगा ना बस। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स आएंगे इस ज्योग्राफी में आपको। मैम ज्योग्राफी का मैप बता दीजिए सेकंड चैप्टर का कौन सा करना है। और उसके लिए पूरा मुझे सब चीजें खोलनी पड़ेंगी, अभी हिस्ट्री की बुक मेरे हाथ में है इस समय, पता है आपको? ओके मैम तो हिस्ट्री पढ़ ली। Ma'am, in history only chapter 2 is coming, no? In half yearly. I will give only chapter 2 because chapter 1 already I have assessed in the UTs, right? Yes, Thank you मैम। चलिए, can you tell? Ma'am, please start with the chapter. I am starting that only. Which page number we have to read from? Ma'am page 40. Civil war we Ma'am, have page done. number 40. Excuse me, Ma'am, ma'am. we have- Yes, Yes, ma'am. beta. Ma'am, civil war we have done, ma'am. Ma'am, flowcharts will also come to draw. बेटा फ्लो चार्ट्स ऐसे नहीं आएंगे, आप आंसर्स दिखने के लिए फ्लो चार्ट्स की हेल्प ले सकते हो, ठीक है? मैम अभी तो फ्लो चार्ट भी Okay. कंप्लीट नहीं हुआ है मैम। वो हम सब कर Yes, लेंगे, ma'am. बहुत टाइम है बेटा, हम सब कर लेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहो आप। लेकिन मैम इंफॉर्मेशन तो सारे फैक्ट्स बुक ही में दिए हुए हैं फ्लो चार्ट्स के भी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो
Civil war we have to start from. Yes, ma'am. Ma'am, we have done civil war, ma'am. We have done. No, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, we have done the civil war. हाँ बेटा कर लिया था, सही कह रहे हो, सॉरी, यू आर राइट. वी हैव I'm टू स्टार्ट फ्रॉम reading, not done. रीडिंग. हम फिर कर लेंगे बेटा, रीडिंग हम फिर कर लेंगे. मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, पेज नंबर 42 वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम. ठीक है. Yes, ma'am. हाँ. अब कह रहा है कि ड्यूरिंग द सिविल वॉर, वी ऑल नो दैट ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक्स, दे were the ones who came up as a major and single party, right? Now these Bolsheviks, what they did, they during the civil war they kept the industries and the banks under the nationalization part. They were nationalized and they remained as nationalized only. Second thing, farmers were permitted to cultivate the land. Then 5-year plan. उत्कर्ष स्टाइल अपने आप को म्यूट करो बेटा. 5-year plans were made to boost the economy. आपको पता है, हमने शायद पहले भी बताया था कि 5-year Yes, plan ma'am. जो है इंडिया में वो रशिया से हमने Ma'am, it was taken from Russia, ma'am. Yes, ma'am. तो 5-year plans were made to boost the economy. फिर गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल द प्राइजेस फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ. उनको लगा कि भाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से और बाकी डिस्टर्बेंसेस की वजह से विद इन द कंट्री जो भी अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसकी वजह से ये जो सेक्टर था काफी जो है अनटच्ड चला गया था. तो उन्होंने क्या करा कि प्राइजेस फिक्स कर दिए फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ. सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो थी उसको किया गया सो दैट इकोनॉमिक ग्रोथ टेक्स प्लेस. ठीक है. अब इसमें इन्होंने क्या करा, 100%. Ma'am, we are on which page? वी आर ऑन पेज 42 बेटा. Okay, ma'am. ठीक है. कह रहा है कि जो फर्स्ट जो 1929 से 1933 के बीच में देयर वाज 100% रेज इन द ऑयल, कोल एंड द स्टील. और न्यू फैक्ट्रीज जो थी दे हैड कम अप सो दैट कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जिसको कि फोरसाइटेडनेस जिसके लिए शो करा गया था उनमें और ज्यादा फोकस किया जा सके. ठीक है. अब क्या हुआ कि ये जो टारगेट्स रखे गए स्पेशली इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, आपका इकोनॉमी को बूस्ट करने का, उसके लिए क्या हुआ, रैपिड कंस्ट्रक्शन वर्क जो था उसको अंडरटेक किया गया. और ये रैपिड कंस्ट्रक्शन वर्क जो अंडरटेक किया गया उसकी वजह से पुअर वर्किंग कंडीशंस दोबारा से प्रिवेल होने लगी इन द कंट्री. हार्ड लाइफ अगेन द वर्कर्स हैड टू फेस. क्योंकि जब हम किसी चीज को अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो उस अच्छा करने की कोशिश के पीछे कोई ना कोई तो ऐसा होता है जो एक्सप्लॉइट होता है. तो दोबारा से जब कंस्ट्रक्शन बहुत लार्ज स्केल पे होने लगा तो ये वर्कर्स जो थे उन्हीं को दोबारा से एक्सप्लॉइट किया जाने लगा, या ये कह लो कि वो एक्सप्लॉइट हुए बिकॉज ऑफ द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट वाज टेकिंग प्लेस, राइट. पर इन लोगों की लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, इन लोगों को थोड़ा सा कंफर्ट जोन देने के लिए क्या किया गया, स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया गया. उस स्कूलिंग सिस्टम में ये इंश्योर किया गया कि जो क्रचेस हैं वो बनाए जाएं, जहाँ पे वर्किंग क्लास जो वर्किंग वुमेन थी उनके कंफर्ट उनको एक कंफर्ट जोन दिया जाए जिसमें कि वो अपना बच्चा वहां लेके आ पाए वर्किंग प्लेस पे, और उनको उन क्रचेस वगैरह में छोड़ दें जिससे कि जहाँ पे कि दे कुड बी टेकन केयर ऑफ. एक ही होता है भाई बच्चा घर पर है तो दिमाग हमेशा वहीं रहता है, आप काम पे फोकस नहीं कर पाते हो, पर बच्चा अगर आपके पास है, आपके साथ ही है और आपको पता है कि एक स्टेप बाहर निकलोगे और आपका बच्चा जो है आप उसको मिल लोगे. तो ये जो क्रचेस की जो फैसिलिटीज थी ये इसलिए जो है इनिशिएट करी गई ताकि जो लेडीज बाहर निकलती हैं काम करने के लिए वो बच्चे की वजह से अपने काम को निग्लेक्ट ना करें. फिर चीप पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वर प्रोवाइडेड टू दीज वर्कर्स. ठीक है. अब जैसे अब हेल्थ फैसिलिटीज में सबसे पहले ये देखना है कि भाई हाइजीन कैसी है. ठीक है. टॉयलेट्स वगैरह प्रॉपर है कि नहीं है. ऐसा तो नहीं है पीपल आर गोइंग इन ओपन. भाई वर्कर्स वगैरह की हेल्थ तो आप तभी इंश्योर कर पाओगे ना जब इनको प्रॉपर आप जो हाइजीनिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराओगे, इनको टॉयलेट्स प्रोवाइड कराओगे, इनके लिए वॉशरूम्स प्रोवाइड कराओगे, है ना. तो ये सब चीजों का ध्यान रखा गया और इनकी लाइफ को और स्मूथ करने के लिए इनके लिए क्वार्टर्स बनाए गए. ठीक है. अब इन क्वार्टर्स, अब क्योंकि ये जो क्वार्टर्स थे ये मॉडल लिविंग का एक जो है मॉडल लिविंग का एक स्ट्रक्चर सेटअप किया गया जिसमें कि इन लोगों को घर बना के दिए गए जिसमें कि ये लोग रह सके. बट ये जो घर बने हुए थे ये इतने ज्यादा मतलब फ्लोर्स पे थे कि बेचारे जो टॉयलेट्स वगैरह बनाए थे वो सिंगल एक ग्राउंड फ्लोर पे बने हुए थे और बाकी वर्कर्स जो थे वो फ्लोर्स पे रहते थे अलग अलग. तो वो जब तक नीचे आते ठंडियों के टाइम पे इट वाज डिफिकल्ट फॉर देम टू अप्रोच दीज वॉशरूम्स एंड टॉयलेट्स. तो अगेन दे वर लीडिंग अ
हार्श लाइफ, स्ट्रगलिंग वाली लाइफ इनकी फिर भी थी। तो इन चीजों को गवर्नमेंट जो है एनालाइज नहीं कर पाई। तो ये थोड़ा सा जो सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना ये लोग चाह रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहे थे। ठीक है, यस मैम। yes Anoki, I completely agree with you. अब government wanted to do several things for the people, but the problem was the resources were limited, है ना। कई बार होता है कि हम 10 लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, बट हमारे पास रिसोर्सेज इतने लिमिटेड होते हैं कि हम 2 ही की हेल्प कर पाते हैं। तो फिर हम उन 10 में से उन 2 लोगों के बारे में सोचते हैं जो कि बहुत ज्यादा नीडी होते हैं या जिनको बहुत ज्यादा हमारे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के साथ भी थोड़ा सा ये क्वेश्चन आ रहा था कि भाई whom to help and how to help, क्योंकि रिसोर्सेज वर लिमिटेड एंड दे वांटेड टू go for the welfare of each and every person in the country, right? Yes, यस ma'am. मैम। Much is clear? Yes, ma'am. चलिए, यस मैम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक Yes, पढ़ते हैं, ma'am. which is on page 44, स्टेनिलिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। अब ये जो स्टेनले थे, ये बोल्शेविक्स के लीडर बने आफ्टर द डेथ ऑफ, who was the leader of bolsheviks? मैम लेनिन। लेनिन। मैम लेनिन। yes, व्लादिमीर लेनिन के डेथ के बाद he Yes, was the one who became the leader of Bolshevik party। और जब स्टेनले आए पावर में, तो he had his own plan। जैसे हर कोई जो लीडर होता है उसका अपना आउटलुक होता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो स्टेनले था उनका भी अपना आउटलुक था टुवर्ड्स द सोशलिस्ट कंट्री, वो किस तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। तो उनका जो तरीका था दैट वाज लिटिल डिफरेंट। ठीक है, था वो तरीका वही बोल्शेविक्स के जैसे जो व्लादिमीर लेनिन चाहते थे वैसा ही था, बट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग इट वाज लिटिल डिफरेंट। अब उन्होंने क्या करा, जैसे अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, तो जो एग्रीकल्चर लैंड था वो स्टेट और फार्मर्स के ने कलेक्टिवली उसको जो है कंट्रोल किया हुआ था, और उसमें से जो भी प्रॉफिट आ रहा था दैट वाज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये जो सिस्टम था जो कि इंट्रोड्यूस किया गया, उसको कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से जो है कोट किया गया फॉर दी बूस्टिंग ऑफ द एग्रीकल्चर। ठीक है, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर को बूस्ट किया गया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इनिशियली हमने पढ़ा था ना 85% ऑफ द पीपल इन रशिया वर इनटू एग्रीकल्चर। यस मैम। राइट, Yes, ma'am. तो ये जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम था ऑफ एग्रीकल्चर, ये कहीं ना कहीं एक सेटबैक लेके आया, क्योंकि स्टेनले ने जो भी अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी वो थोड़ी सी हार्श थी एंड पीपल डिड नॉट अग्री टू इट। काफी जो है ब्लड शेड हुआ, पीपल वर अगेंस्ट, दे वर they wanted to do away with the practices that Stanley was imposing on them, but then क्योंकि one state party हो गई थी रशिया, और nobody was allowed to raise voices against the leading party, the ruling party, तो कहीं ना कहीं लोगों को complications भी bear करने पड़े। कूलक्स, कॉलकोज, ये सब चीजों का जो है इंट्रोडक्शन हो गया था, बट लोग जो थे, जो रिच पीजेंट्स जो थे, दे वर नॉट हैप्पी विद द कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। अब कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम में इन्होंने क्या करा, स्टेनले ने, उन्होंने कहा कि जितने भी स्मॉल फार्मर्स, लैंड होल्डिंग वाले फार्मर्स हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स वाले, दे विल बी कलेक्टिंग देयर फार्म्स टुगेदर, मतलब एक साथ लेके आ जाएंगे, एंड ऑल दोज हु होल्ड द शेयर ऑफ द लैंड विल बी कल्टिवेटिंग ऑन द लैंड कलेक्टिवली, और जो भी प्रॉफिट मिलेगा सबको वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि राम श्याम और ने जो लैंड अपना कल्टीवेट करा, राम अपनी अलग प्रॉफिट जो है ले रहा है और श्याम अपना अलग ले रहा है, ऐसा नहीं था। राम श्याम ने कलेक्टिवली जो है कल्टीवेट करा और कलेक्टिवली जो भी प्रॉफिट मिला उसको इक्वली डिवाइड कर लिया। तो ये चीज पीपल कुड नॉट दे डिड नॉट अप्रिशिएटेड दिस आइडिया। उन्हें लगा कि भाई हो सकता है कि अगर 4 लोग लैंड को शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, तो हो सकता है उसमें से 2 लोगों ने बिल्कुल मेहनत ना करी हो फील्ड पे अपनी, और 2 लोगों ने जी जान लगा दिया, तो उन 2 लोगों की जो मेहनत है वो बाकी 2 लोगों को जो है बेनिफिट दे रही है। तो ये कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम से जो पुअर फार्मर्स थे, दे वर वेरी हैप्पी, बट द रिच पीजेंट्स एंड रिच फार्मर्स, दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद दिस आइडिया, बिकॉज दे फेल्ट कि अननेसेसरी उनका जो प्रॉफिट है वो दूसरे को मिल जा रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम था, it failed, it did not like whatever was expected from this collectivization program, it could not give that much of benefit। तो ultimately क्या हुआ, 1927-1928 में रशिया had to face acute supply of grain। इनको ये प्रॉब्लम जो है वो हुई, ग्रेन्स की सप्लाईज की जो है प्रॉब्लम फेस करी उन्होंने। उन्हें लगा कि भाई कैसे जो है जो शॉर्टेज है उसको कैसे कंपनसेट किया जाए, क्योंकि रशिया, हम जानते हैं कि रशिया जो है एक कोल्ड कंट्री है,
जहाँ पे विंटर्स जो है बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में डेवलप हो जाती है विंटर्स में, और सेवरल टाइम्स जो क्रॉप्स हैं वो क्रॉप फेलियर भी हो जाता है बिकॉज ऑफ द हेल्स दैट टेक प्लेस. ठीक है. Yes, ma'am. Right now the government had fixed prices for the grains to be sold, but the farmers were not ready to sell their grains to the government authorities. तो उन्होंने क्या करा, अपने ग्रेन्स की होर्डिंग शुरू कर दी. अभी जब ग्रेन्स की होर्डिंग शुरू हुई तो जैसे आप ब्लैक मार्केटिंग हम जानते हैं ना, ब्लैक मार्केटिंग आपने सुना होगा ना, काला बाजारी जिसको हम बोलते हैं. तो ये काला बाजारी क्या होती है, जिसमें कि जब आपको लगता है कि क्राइसिस की कोई सिचुएशन आने वाली है और उस क्राइसिस की सिचुएशन को मीट करने के लिए आप अपने ग्रेन्स को होल्ड करना शुरू कर देते हो, जमा करना शुरू कर देते हो. ठीक है. मैम इट इज कॉल्ड जमाखोरी इन हिंदी. जमाखोरी, हाँ एग्जैक्टली, आराध्य सॉरी. तो जमाखोरी होती है. तो ये जो रिच फार्मर्स थे उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया क्योंकि उनके पास ग्रेन्स सफिशिएंट थे, बट उन्होंने जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपने जो है ग्रेन्स बेचे नहीं. तो स्टैनले वाज वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस पार्ट. उसको लगता था कि भाई ये जो रिच पीजेंट्स हैं ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं बाय नॉट सेलिंग ऑफ देयर ग्रेन्स टू दी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. तो क्या हुआ, अब इन्होंने स्टैनले ने क्या करा, स्टैनले ने उनके ऊपर जो है चार्ज करवा दिया, रेड करवा दिया. इनके जो गोडाउन्स हुआ करते थे या जो ग्रेनरीज जहाँ पे अपने ग्रेन्स को स्टोर करते थे उन पे अटैक करवाया, चेक करवाया कि भाई कितना ग्रेन है भी कि नहीं है. ऐसा तो नहीं ये लोग हमसे झूठ कह रहे हैं कि भाई हमारा ग्रेन हुआ ही नहीं है, पर कहीं और इन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है. तो ये सब चीजें बड़ा ना, मतलब जो सडन रेड्स होना शुरू हो गई, तो ये चीजें थोड़ा सा पीपल फेल्ट रियली ऑफेंसिव अबाउट दिस. उन्हें लगा कि भाई ये जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट जो है ये कुछ ज्यादा ही जो है हमारे पर हावी हो रही है और ये हमें हमारे बेनिफिट्स लेने नहीं दे रही है. जो प्रॉफिट हमें एक्चुअल में मिलना चाहिए उस प्रॉफिट को ये हमें लेने ही नहीं दे रही. कहीं ना कहीं दे आर सपोर्टिंग द पुअर फार्मर्स, पर उनका मोटिव क्या था, इनका मोटिव ये था कि सबका एक साथ एक जैसे ही जो है ग्रोथ हो, सबकी, सबको सब चीजें मिले. ऐसा ना हो कि कोई जो हमारी कंट्री है या जो हमारे जो एरियाज है, जो रीजन है, वहां पे कोई तो बहुत ज्यादा रिच है, कोई इतना ज्यादा पुअर है कि वो एक टाइम का भी अपना खाना जो है अरेंज नहीं कर पा रहा है. तो गवर्नमेंट की जो मंशा थी, जो सोच थी, जो आइडियोलॉजी थी बिहाइंड दिस कलेक्टिव प्रॉफिट, वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को पसंद में नहीं आ रही थी, उनको समझ भी नहीं आ रही थी ये चीज. ठीक है. सो स्टैनले he felt that rich farmers were holding up the grains to get higher prices. तो इन दैट केस हमने बताया कि उन्होंने क्या करा, उनपे जो है वो करवाना शुरू करा, रेड्स करवाना शुरू करा. अब 1928 में क्या हुआ, बहुत सारे पार्टी मेंबर्स जो थे, दे स्टार्टेड विजिटिंग दी ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज. मतलब जहाँ पे ये जो प्रोडक्शन हो रहा था ग्रेन्स का, उन एरियाज में ये लोग गए और वहां पे उन्होंने रेड करा. और जो वेल टू डू फार्मर्स थे, जिनको की कुलक्स भी कहा जाता था, इन फार्मर्स के जो लैंड एरियाज थे इन पे इन्होंने अटैक करना शुरू करा. पर जो ग्रेन शॉर्टेज था इट प्रिवेल्ड, क्योंकि इन लोगों को कुछ मिल नहीं पाया उनके पास से ज्यादा, क्योंकि उन लोगों को भी पता था कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, कुछ ना कुछ वेज ढूंढेगी टू कीप अ चेक. तो उन्होंने ऑलरेडी ऐसी जगह पे अपने ग्रेन्स को स्टोर करके रखा हुआ था जहां पे कि इनको ना मिल पाए. ठीक है. देन अ डिसीजन वाज टेकन टू कलेक्टिवाइज दी फार्म्स. इट वाज डिफिकल्ट टू मॉडर्नाइज स्मॉल साइज फार्म्स and thus it became necessary to eliminate the kulaks. Kulaks क्या थे? Kulaks जो rich farmers थे, उनके पास जो लैंड एरियाज थे उनको जो है डिसमिस कर दिया है. उनसे कहा गया कि भाई अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब हम कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को अंडरटेक करेंगे जिसमें कि सब लोगों के लैंड्स को जो है हम एक कर देंगे, सिंगल कर देंगे, जिसका की कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा और जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो सबको इक्वली डिवाइड हो जाएगा. आई होप दिस मच इज क्लियर एंड अंडरस्टूड. यस मैम. ठीक है. Then land was brought under the state control and developed it in the industrial lines with machinery. मतलब जैसे हम कहते हैं ना, एग्रीकल्चर का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया. अब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ कि जो लार्ज लैंड होल्डिंग्स हो गई, तो उन लार्ज लैंड होल्डिंग्स पे मॉडर्न मशीन्स को यूज किया गया, वो सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स को यूज करा गया जिससे कि हमारी कल्टीवेशन जो है वो डबल हो जाए, डबल 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, जितना वो उसको प्लस कर सकते थे वो उतना उन्होंने उसको करना शुरू करा. उसके लिए उन्होंने जो है गुड वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करे, फर्टिलाइजर्स यूज करे, पेस्टिसाइड्स यूज करे, बहुत सारी चीजों को उन्होंने. मींस मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. यस, ऑल द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन दीज मॉडर्न फार्म्स. फिर स्टैनले जो थे, उनका कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो जो कुलक्स, कॉलखोज जो थे, कॉलखोज मतलब क्या थे? Kolkhos were the collective farms. People were forced, the farmers were forced to work on the
कॉलकोस, कलेक्टिव फार्म्स पे उनको काम करने के लिए कहा गया और दे वर टोल्ड फोर्सफुली टू शेयर द प्रॉफिट एज वेल. ये अभी हमने आपको बताया ही था. लैंड वाज ट्रांसफर्ड टू द स्टेट. many resisted this, but then they had no choices. They were supposed to surrender their lands to the government. और जिन्होंने ऐसा नहीं करा, they were killed forcefully by the authorities. अब कई बार ऐसा होता है ना, सरकार का कानून अगर कोई नहीं मानता है तो उसको दो तरीके से पनिश किया जाता है, या तो उसको पिनलाइज किया जाता है या फिर उससे वो चीज ले ली जाती है. तो वहां पे उन्होंने क्या करा कि पिनलाइज तो करा. अब पिनलाइज कैसे करा? बाय टेकिंग अवे देयर लाइव्स. उनको जबरदस्ती मार दिया गया ये कह के कि भाई यू आर डिसोबेइंग, यू आर एक्टिंग एज अ ट्रेटर. आप देश के खिलाफ जा रहे हो, देश के आपके अंदर पेट्रियोटिज्म नहीं है, आप नहीं चाहते हो कि देश ग्रो करे, तो इसलिए टैगिंग देम एज ट्रेटर्स उनको मार दिया गया. ठीक है. और उनके मतलब Yes, ma'am. और उनके जो कैटल्स वगैरह होते थे उनको भी जबरदस्ती ले जाके उनको भी मार दिया गया, सो दैट दे कैन नॉट प्रैक्टिस कल्टीवेशन एट ऑल. तो ये, और कुछ लोगों को एग्जाइल दे दिया गया, कुछ लोगों को देश से निकाल दिया गया, कुछ लोगों को जो है वो कर दिया गया, क्या बोलते हैं, डिपोर्ट कर दिया गया फ्रॉम देयर ओन कंट्री. उनसे कहा गया कि भाई आप कुछ समय के लिए अपने देश से बाहर रहोगे, आप वहां पे नहीं आ सकते हो. तो बहुत सारे प्रोविजंस जो थे गवर्नमेंट ने करे जस्ट टू बिकम स्ट्रिक्ट एंड टू एंश्योर दैट देयर इज ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. ठीक है. This much is clear? Yes, ma'am. Then Yes, many of them, they Yes, ma'am, like clear. those people who did not agree to the government conditions, they said that we are ready, we will take your punishment, but then we don't agree with the government's provisions that what government has done. Maybe they are right, but then we feel that it is a kind of exploitation on us, that we are forced to surrender our lands to the government authorities. And many of them, those who denied to work on the collective farms, they were punished severely by the government. Now those who were refused, they were exiled or they were deported. अभी जो हमने आपको बताया, very few farmers were allowed to cultivate independently. But अच्छा, अब जैसे कुछ farmers को तो ये परमिशन मिला कि चलो ठीक है, आप नहीं मिलकर करना चाहते हो collective farms पे, तो आप अपना individual करो. But then जो government facilities collective फार्मर्स, जो कलेक्टिवाइजेशन के प्रोग्राम के अंदर जो फार्मर्स को दी जा रही थी, दोज हु अग्री टू वर्क ऑन द कलेक्टिव फार्म्स, उनको जो फैसिलिटीज दी जा रही थी वो उन फार्मर्स को बिल्कुल नहीं दी जा रही थी, दोज हु डिड नॉट अग्री टू वर्क ऑन द कलेक्टिव फार्म. उनसे कहा गया कि आप जो भी करोगे, यू विल वर्क ऑन योर ओन, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट गवर्नमेंट टू सपोर्ट यू फॉर एनीथिंग. तो उनका अनाज भी सरकार नहीं खरीदती थी और लोगों को भी मना कर दिया जाता था कि उनका द्वारा बेचा गया कुछ भी सामान आप नहीं खरीदोगे, सो दैट दे लर्न अ लेसन कि अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाओगे तो किस तरीके से गवर्नमेंट कैन पनिश यू. राइट? Yes, ma'am, Yes, understood. ma'am. अब ये सारे प्रोविजंस करने के बाद भी जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं, और 1930-33 में टेरेबल फेमाइन जो थे वो रशिया में आए, और उस टेरेबल फेमाइन ने क्या करा, अप्रोक्सीमेटली 4 million people lost their lives in these famines. I hope up till here everything is clear and understood. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anytime the meeting is going to end, remaining part will continue on Tuesday, right? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Because Monday is a last holiday. Thank you, also. ma'am. क्या जन्माष्टमी है ना, तो हॉलीडे होगा ऑब्वियसली. Happy Janmashtami, ma'am. चलो, थैंक Ma'am, यू. Janmashtami is on Janmashtami. Sunday. चलिए, हाँ जी विशेष, टुमारो इज Monday. Ma'am, संडे, Janmashtami is on Sunday. सैटरडे, मंडे बेटा, मंडे, जन्माष्टमी इज ऑन मंडे. Yes, on ma'am. Monday. Janmashtami Yes, is ma'am. on Monday. हाँ, मंडे को है Thank विशेष. you, ma'am, and happy Janmashtami, ma'am. थैंक यू बेटा, सेम टू यू. Happy Thank you for the Janmashtami. class, ma'am. चलिए, Thank you, ma'am. Happy थैंक यू Janmashtami. फॉर